meeting. And today we are having very two interesting, dynamic, and young personalities with us. Miss Harshita Minocha, she is senior HR at the MacBuddy, CB India Private Limited, and Mr. Palash Vishkarma, who is founders office EOE Genuine. So, guys, I welcome you all once again in this session of MacMate Mastery, where we'll be having a discussion on the business and the HR management. So guys, this MacMate Mastery is an incredible initiative which is taken by the Dev Plus Code in collaboration with the MacBuddy. So this Dev Plus Code community actually started a year ago under the vision of Mr. Aman Singh, who is the founder of this Dev Plus Code community, where we basically target to provide the students with the best mentorship, guidance, with the different courses, workshops, one-to-one interaction with the different leaders of the different organizations, and many more things. Until now, we have covered almost 1,000 plus students from different schools and the colleges. And guys, in this MacMate Mastery session, we will be having a 10 days workshop where we'll be talking on the different subjects related to the AIs and business management, HR, and everything. Okay, so at the end of the today's session, guys, we will be having a very quick quiz round. So don't leave the meeting. Stay tuned. And if you're having any doubts, you can just raise your hands or you can ask your doubts in the chat box. Okay, so please be attentive in this section in the session because we will be having a quiz round and the winner of this quiz round will be awarded with a surprise gift from our side. Okay, so let's start this session. Ashita ma'am, the meeting is yours. You can start. Thank you. Good Thank you so evening, much. everyone. So myself, Harshita Minocha. I'm HR at MacBuddy and I'm going to take a short session on HR. So let's begin the session. I hope you guys enjoy this. I'm going to share my PPT. So here's my PPT. Human resource is a division of a business responsible for finding, recruiting, screening, and training job applicants. So let's come to know what is human resource. HR is a vital function within an organization responsible for managing complex interplay between employees and the data and the company. As we know, HR work as a bridge between for the company and the employee. HR have to look all the responsibility and the functions regarding to the company and employee. HR professionals plays a critical role in recruiting, onboarding, and retaining talent, ensuring that the workforce aligns with the organizational goals. They oversee employees' relationship,
handle conflict resolutions, and implement policies that foster a positive work environment. एज वी नो एचआर एक ऐसा इंसान होता है जो एम्प्लॉयज पे लुक आउट करता है जहां पे वो रिसोल्यूशंस करता है कॉन्फ्लिक्ट एंड द प्रॉब्लम्स which are occurring in the organizations. Now today we're gonna learn about what we introduction, distributed remote and hybrid work, upscaling and rescaling, people analytics and employee experience, and the main important topic of this session is 7 pillars of HR, and the last is AI and automation. Now let's come to know about introduction. HR is responsible for your employee life cycle, which includes talent management, benefits administration, risk management, compensation, and compliance. All in all, HR is responsible for all organization work. And the main asset of HR is people. People is the main asset for the company. If there is people, then there will be company. And the second important topic of this session is distributed, remote, and hybrid work. Distributed HR is where less of the work is being done by central HR office but can be completed by workers and line managers directly after a job is completed. And hybrid work and remote work are different. As we know, hybrid work and remote work are different. Like remote work, you have to work from home, and hybrid work is flexible. Either you come office or you stay at home. Remote workers work from home all the time and need not have the options to go into the office, while hybrid workers will spend a portion of their time working from home. As I told you, they also have the flexibility to choose where and when they want to work. And the mean of it, upscaling and rescaling. There are three topics comes in the list. It's continuous learning, new opportunities, and investing in talent. Let's come to know about upscaling. When an employee undertakes learning, to expand their existing skill set, that learning is known as upscaling. जब हम एक एम्प्लॉय को अपने अंडर लेते हैं और हम उसे कुछ सिखाते हैं तो उसे अपस्केलिंग कहते हैं. And let's come to know about rescaling. Employee reskilling involves learning new skills outside of the worker's existing skill set. These skills are often closely adjacent to their current function but may sometimes be geared towards different paths. Like reskilling, in this we take our old employees and we teach them new traditions, new additions of equipments, and through this we come to know which are capable or which are not capable towards their work. Now, come to know people analytics. People analytics is the practice of collecting and transforming HR. People analytics एक practice होता है जिसमें हम एक डेटा इकट्ठा करते हैं और उसको ऑर्गेनाइजेशन में एक्शनेबल बनाते हैं that improve the way to do the business. Like a businessman needs something new and he collects all the data from the market to know about which is in. People analytics can be defined as a deeply data-driven and goal-focused method of studying all people, processes, functions, challenges, and opportunities at the work to elevate these systems and achieve sustainable business success. People analytics is often referred to as a talent analytics or HR analytics HR. एम्प्लॉय एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज होती है एम्प्लॉय एक्सपीरियंस वो कंपनी के प्रति कैसे रख रहा है. जैसे अब वो कंपनी में आ रहा है, डेली आ रहा है, उठ के आ रहा है, उसके ऊपर पूरा बर्डन थोप दिया जा रहा है काम का, तो वो खुश है उस चीज से कि नहीं? ऑफकोर्स वो नहीं होगा. उसको उस हिसाब से उसका बोनस नहीं मिल रहा है, उससे उसे पे आउट नहीं हो रहा है, तो ये चीज एचआर को देखनी पड़ती है एंड ही हैज टू आस्क
पर्सनल परसेप्शन कि इफ इट्स हैप्पी और नॉट। अगर एम्प्लॉय खुश नहीं है अपने काम से तो हमारी कंपनी की ग्रोथ भी नहीं होगी और फंक्शन भी नहीं करेगा प्रॉपरली। इट इज नेसेसरी टू मेक एम्प्लॉय हैप्पी टुवर्ड्स देयर वर्क and the environment of organization should be healthy and favorable. Like अगर आपको एक वर्कलोड दिया जाए और आपको बोला जाए 2 दिन के अंदर करना है तो एम्प्लॉय भी लाइक हम नहीं कर सकते, इट्स लाइक टू मच। तो एम्प्लॉय उस चीज से खुश नहीं होगा, उसका जो नेचर रहेगा टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट बी गोना गुड। और इससे कंपनी भी इफेक्ट होगी, वर्क भी इफेक्ट होगा एंड द ग्रोथ मोस्ट ऑफ इट। So HR has to make a bridge between the organization and the employee to look out everything is going to be perfect or not. And the most important of it 7 pillars of HR। जैसे आप जानते हैं बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, वैसे ही HR को फंक्शन करने के लिए 7 pillars भी स्ट्रांग होने चाहिए। First is recruitment and selection, second performance management, third learning and development, fourth succession planning, fifth compensations and benefits, sixth HR information system, and the last one HR data and analytics. First one is recruitment and selection. HR looks out like to whom he has to select and recruit according to the company's probable requirement. And second is performance management. Performance management regarding to the how the workers and organization both are performing together। लाइक एक कंपनी और एक एम्प्लॉय के बीच का ये बॉन्ड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी और एम्प्लॉय दोनों मिलकर ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इट्स कम अंडर द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इफ द परफॉर्मेंस इज गुड देन द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी इज गोइंग टू बी हायर। थर्ड इज लर्निंग एंड डेवलपमेंट। If we hired an employee, so we have to teach him and develop him according to the environment, the work we are going to give, and the experience which he has to face. And the fourth is succession planning. Succession planning related to like what the plan should be executed towards the success of a company and the employee as well as। कंपनी दोनों तरफ से चलती, एक तरफ से नहीं चलती। अगर कंपनी की भी ग्रोथ हो रही है तो एम्प्लॉय की भी ग्रोथ उतनी मायने रखती है इस चीज में। Compensation and benefit, what should be beneficial towards the company and the employment should be given, it's depend on all the HR, like HR is in all and all person, he has to look from both sides, upper to lower। And the sixth one is HR information system, the information which is relating to all the organizations, workforce, and the environment, and the employee preference should be there। And the last is HR data and analytics. Last one is AI and automation. It's not an important topic, but at least you guys should know about what is AI and automation play a role in HR. AI use in HR refers to the deployment of machine learning, natural language processing, which is known as NLP, and other AI technologies to automate human resource tasks and support decision making। सबसे जरूरी चीज AI क्यों यूज होता है HR में, लाइक इन फ्यूचर वी गाइस थिंक लाइक AI ऑटोमेशन हमारी HR की पोजीशंस लेगा, नो इट इज नॉट। लाइक मेन यूज AI का होगा रिक्रूटमेंट में, होगा रिज्यूमे में, होगा। So here I come to end of my session. So there is any queries regarding? Share mic permission if you raise your hand. If anyone have any doubt, then they can ask in chat box.
please. So, Palas sir, can you start the meeting now? Hello. Hello. Am I audible to all? Yeah, sir. Sir. Okay. So hello everyone, myself Palavesh Karma, founders office at UA Genuine, and am I here to present a brief introduction about the business management. Is my screen available to everybody? Sir, it is visible. Okay, yeah. So let's continue about the effective strategies for successful business management. सो सेटिंग क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव नाउ अगर देखा जाए कि क्लियर गोल और ऑब्जेक्टिव को अगर सेट किया जाए तो कैसे करते हैं गोल वो चीज होती है जिसको आप अल्टीमेटली डिसाइड करते हो अचीव करना लेकिन उसके बीच में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है ताकि एट द एंड आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर सके ना गोल के बनते बनते आप वहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं टास्क आते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको आप धीरे धीरे वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं अपने आप को डेवलप करते हैं अपने आप को डिसिप्लिन बनाते हैं साथ में आपको सेल्फ डिसिप्लिनरी एक्टिंग सेल्फ लर्निंग के साथ साथ जब आप एक साथ सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तब जाके आप एक गोल को अचीव करते हैं गोल्स को आप या बहुत सारे गोल को आप अगर एक डेडलाइन में सेट किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन अगर आप इस पर टाइम पीरियड की प्रॉब्लम ना हो और आपको अगर सेट करना हो तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं So the second slide is developing a cohesive team. अब एक टीम बनाने के लिए आपको ऐसे कम्युनिकेशन स्किल की भी जरूरत होती है जहां पे आप अपने आइडिया को दूसरों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए या आप ऐसे लोगों को ढूंढें जहां पे सब दोनों सबका माइंडसेट लाइक माइंडेड हो जैसे अगर क्रिकेट इंडिया टीम की बात करें जब इंडिया टीम हारी थी वर्ल्ड कप अभी तो वहां पे सिर्फ विराट कोहली की दिक्कत नहीं थी विराट कोहली नहीं हारा वहां पे टीम में आ ही नहीं था टीम में सब आते जब सब लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे डेफिनेटली हमारा आउटपुट अच्छा रहेगा हम अच्छे से चीजें कर पाएंगे लेकिन अगर टीम अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी आप उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे या आप उनके साथ प्रॉब्लम होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आप उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रखेंगे तो वहां पे आपको फिर दिक्कत हो सकती है आपको टीम को मैनेज करना उनसे बातचीत करना अच्छे से कम्युनिकेट करके उनके माइंड को एक लेवल सर्टेन लेवल पे लेके आना कि हाँ अब हम काम कर सकते हैं वी आर एट दैट लेवल वी कैन अचीव एनीथिंग Now, implementing efficient communication channels. So, अगर इस टॉपिक पे बात की जाए तो कम्युनिकेशन की बारी आती है तो जहां पे हम कम्युनिकेट करना हार जाते हैं या अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हम अपने आइडियाज या अपने आइडियलिज्म या अपने प्रोपोजिशंस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो वहां पे जो सामने वाला बंदा होता है वो अच्छे से अपने आप एरिया को ग्राप नहीं कर पाता है तो हम अपने वर्ड्स में ऐसे वेट्स डाले ऐसे इंप्रेसिवनेस से ऐसे बोले ऐसे कॉन्फिडेंस से बोला जाए कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है भले थोड़ा बहुत भी गलत हो है लेकिन अगर आप अपने वर्ड्स पे खड़े हो तो सामने वाला भी डाउट करेगा कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है इसमें कुछ तो बात है ये अपने आइडियाज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो और कुछ तो चीज ऐसी ला रहा है कि कुछ ना कुछ करने लायक है नाउ एम्फेसाइजिंग इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट अब जैसे बोला जाए कि जैसे आप कोई टास्क अचीव करना चाहते हैं या अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो वहां पे धीरे धीरे करके आप डेट सेट करते हैं जैसे मान लीजिए अगर आप डिसाइड करते हैं कि मैं एक दिन में 1000 स्टेप्स चलने हैं लेकिन आप देखते हैं कि मैं सिर्फ आधे घंटे में चल सकता हूँ तो क्या ना वो आधा घंटा आपका 15 मिनट बन जाए और 15 मिनट करके आप फिर ऐसे में दो सेट बना सकते हैं कि 15-15 मिनट की हाँ 1000 स्टेप में 50 मिनट्स में चलूंगा सेकेंड 1000 स्टेप नेक्स्ट 50 मिनट्स में चलूंगा ऐसे में करके आपका गोल डबल अच्छे से अचीव भी हो जाएगा प्लस आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे जो कि आप एक कंपनी के अंदर भी देखते हैं अगर किसी भी एम्प्लॉय या वर्कफोर्स को काम दिया जा रहा है वहां पे अच्छे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो वहां पे अच्छे से आउटकम नहीं मिलेगा
प्लस उसका टाइम भी वेस्ट होगा, फर्म का टाइम वेस्ट भी होगा, और प्लस जो बिजनेस की बात होती है वहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो होता है सबसे मेन पॉइंट होता है कि अगर आपको कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपके फीडबैक्स आ रहे हैं, यू विल बी हैविंग सॉरी you will be having greater outputs than before. Now, let's see about encouraging innovation and creativity. Encouraging a culture मतलब creativity, innovation लाना किसी भी जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पुरानी कंपनी का एग्जांपल है, जैसे कि ब्लैकबेरी मोबाइल फोन करके कंपनी थी, और वहाँ पे जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन और नीड्स के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी ने, ब्लैकबेरी कंपनी ने अच्छे से इन्वॉल्व नहीं किया, अच्छे से कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, जो कि अगर उसके बदले दूसरी कंपनीज है जैसी मोस्ट नोन कंपनीज है सैमसंग, एप्पल्स, वहां पे उन लोगों ने क्रिएटिविटी दिखा के, इनोवेशन दिखा के, अच्छे अडेप्टेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फाइड नीड, फीडबैक्स को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप किया, अपनी क्वालिटीज डेवलप की। वैसे अगर क्रिएटिविटी और इनोवेशन लाते हुए जाते हैं तो आपकी कस्टमर फीडबैक बहुत ज्यादा अच्छा होता है और मैनेजमेंट में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, व्हेन, वेयर एंड हाउ। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कैसी है और किधर है। अगर आप तीन फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखते हुए किसी भी प्रॉब्लम को ढूंढें और सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आप अपने पेपर में एक अच्छे से आधी प्रॉब्लम लिख लें और उसको थोड़ा सा नोटिस करें कि हाँ ये प्रॉब्लम ऐसी है, तो आप ऑलमोस्ट आधी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होते हैं। जब प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको पहले से पता हो कि ये प्रॉब्लम मेरे पास अभी से आने वाली है, तो कल मेरे पास ये प्रॉब्लम आने वाली है। आप बिफोर हैंड उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। और जब जब प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि आपको ऑलरेडी नॉलेज भी हो कि आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे में आपको दूसरे बंदों से कम्युनिकेट करके, दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करके, अपने आइडियाज को डिस्कस करते हुए, सब चीज को प्रिपेयर करते हुए, आइडिया डिस्कशन, आइडियलिज्म, प्रिपरेशन, सब चीज करते हुए आइडियाज को करा जाता है, तो फिर वहां पे आप प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इम्प्लीमेंटिंग कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। जब लर्निंग और डेवलपमेंट की बात आती है तो वहां पे ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई एम्प्लॉय, वर्कफोर्स या कोई पर्सन किसी फर्म या बिजनेस में काम कर रहा हो, अगर लर्न कर रहा हो अपने अकॉर्डिंग, अपने डेवलपमेंट के लिए, क्या वो खाली अपने लिए कर रहा है? नहीं, वो साथ में जो उसके साथ में बंदा बैठा हुआ है या फर्म जो कर रही है उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है कि जो फर्म्स होती है, बिजनेसेस होती हैं, वो अपने एम्प्लॉय और वर्कफोर्स को ऐसे कोर्सेज दिए जाते हैं ताकि वो डेवलप करे, एट दी एंड अच्छा आउटपुट दे। अच्छा आउटपुट देने के साथ साथ वहां पे रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा, अच्छा जनरेट रेवेन्यू होगा तो वहां पे एट दी एंड एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीजमेंट मिलेगी, आपके सैलरीज भी बढ़ेंगी। कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट बहुत ही बड़ा एक्सपेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है सोचने समझने को, तैयार करने को, लेकिन अगर स्मार्ट वे में किया जाए तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। प्रायोरिटाइजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जैसे कि मैंने कहा था, ब्लैकबेरी का एग्जांपल लिया था कि वो अपने कस्टमर बेस को नहीं समझ पाया, वो एट दी एंड एक कॉर्पोरेट फोन बन के रह गया जहाँ पे इतना ब्लैकबेरी को कॉन्फिडेंट था कि हाँ मेरी सिक्योरिटी, मेरे इंटरेक्शन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ना कि दूसरी कंपनी। लेकिन वो ये कहीं कहीं ना कहीं हार गया कि बाकी जो कंपनीज है वो कस्टमर्स की फीडबैक लेके अपने आप को चेंज कर रही है, अपने डिवाइसेस को हैंडल कर रही है, इसके साथ साथ वहां पे कस्टमर फीडबैक उनका बढ़ते जा रहा है। इसलिए जो ब्लैकबेरी का मार्केट था वो गिर गया और बाकी सैमसंग और एप्पल्स का मार्केट बढ़ गया। तो वहां पे अगर देखा जाए तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रायोरिटाइजिंग इस बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बिजनेस के लिए कस्टमर्स को सुने और उनकी ऑटोमेटिक चेंज करें विद द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, जिसके साथ साथ आप पूरी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि एट दी एंड कस्टमर ही आपका बेस है। नाउ फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग वर्क एनवायरनमेंट, अगर इसमें देखा जाए एक जगह पे काम करने के लिए आपका एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए। हर बार अच्छा हो ये भी जरूरी है, हर बार खराब हो ये भी जरूरी नहीं है। अगर पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट है, कहीं ना कहीं से आपका आउटपुट भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगर यहाँ पे आपको कोई कलीग है वो आपको मतलब चार्ट में बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं वर्क हैम्पर होगा। अगर आपका कलीग अच्छा है, आपकी टीम अच्छी है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कम्युनिकेट करके, आपको वर्क एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खुश है, कहीं ना कहीं से आपको एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको कंपनसेशन मिल रहा है, एंड यू हैविंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, तो वहां पे आपका जो वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा एंड यू विल हैव अ गुड आउटपुट फॉर द फर्म एंड द कंपनी। नाउ
it's the last slide, and it is about monitoring and measuring key performance indicators. तो ठीक है, तो सबसे सामने वर्ड देखा हमारे पास सक्सेस वर्ड सुनने में भी बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर फॉर्म की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो यहाँ पे देखा जाता है कि सक्सेस के लिए अगर आपको अचीव करना है, अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना है, अपने एम्प्लॉयमेंट को अच्छे से रखना है, एम्प्लॉयमेंट वर्क बेस को अच्छे से रखना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, साथ में आपको फीडबैक्स भी देखने हैं, आपको पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट भी रखना है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें अचीव करनी है ऑब्जेक्टिविकली, ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ पाए। कुछ बिजनेसेस में एक फंक्शन यूज होता है, इंडिकेटर यूज होता है, जिसका नाम है KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजीज और सारे आउटकम्स को ब्रीफली कंट्रोल करने के काम आता है, जिसकी हेल्प से आप आगे जाके फ्यूचर स्ट्रैटेजी आराम से डेवलप कर सकते हैं और साथ में सारा काम कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द बिजनेस मैनेजमेंट। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क? Hello. Hello. Yeah, that's all about the slide. Do you have any questions to ask anyone? Sir, one of the question is from name is Muskan Pandey. Okay. How do you see the role of HR evolving in the next 5 years? How do Hello. I see the role of evolving HR in 5 years? Yeah. Hello. 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 Yes, you are asking me Yes, sir. about how I see the role of HR in 5 years. Sir, actually, this question is from Muskan Pandey. Okay. Question is how do you see the role of HR in evolving in the next 5 years? Okay, so in the brief context, as we know, HR is a very major domain in any of the company. और अगर वहां पे देखा जाए कि HR एक ब्रिज है एम्प्लॉयज और उसके फाउंडर्स के लिए, क्योंकि जब जो भी एम्प्लॉयज के बीच में दिक्कत आती है वो HR ही कम्युनिकेट करता है। लेकिन HR के पास अब कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कैसे हैंडल कर पाए, क्योंकि HR को टू फेस होना पड़ता है, एज अ फैमिली मेंबर एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन एज एन एम्प्लॉय भी फाउंडर्स के लिए, क्योंकि HR का काम होता है वर्कफोर्स को मेंटेन करना। अगर HR अच्छे से वर्कफोर्स मेंटेन नहीं करता है तो वहां पे उसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय को दिक्कत हो रही है वो सीधा किसी भी कंपनी के डायरेक्टर को जाके नहीं बोल सकता है कि सर मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि एज अ लेवल ऑफ डिग्निटी, एज अ लेवल ऑफ अप्रोच वहां पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि अचीव करने पड़ते हैं। अगर आपको वहां पे HR बनना है, अगर HR में कोई प्रॉब्लम है तो आपको ऐसा फेस लेके चलना पड़ेगा कि हाँ मैं आपकी फैमिली हूँ, आप मेरे से जो प्रॉब्लम होगी मेरे से सॉल्व करें, मैं आगे जाके कन्वे करूंगी। सबसे पहली बात, आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल, आपको फेस कैरी करना आना चाहिए, व्हेन टू मेक अ पोकर फेस, व्हेन टू बी अ फैमिली मैन। Hello. Yes, sir. Hello. So what was the next question you were asking about? Next question is also from Muskan Pandey. Mm-hmm. In remote work, what challenges do HR professional commonly face, and how can these be mitigated? Okay, in remote work, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप HR की बात देखी जाए कि प्रोफेशनली क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्योंकि पहली बात तो हो जाता है आपका नेटवर्क। आप कितने नेटवर्क हो, आप
कनेक्ट कितने लोगों को कर पा रहे हो। अगर बहुत ही अच्छी बात है अगर कोई पर्सन अपने रिमोट बेस्ड वर्क पे एचआर बनना चाहता है, लेकिन एचआर के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। आईडीपी होता है, आईपीओ होता है, इन ऑफिस होता है, हाइब्रिड होता है साथ में। और आपके अगर किसी कंपनी में जाए तो आपके सामने अगर 10 लोग बंदे बैठे हैं, 10 एम्प्लॉय टीम बैठी है 10 बंदों की, तो आप उसको कैसे हैंडल कर पाओगे एट द सेम स्क्रीन एट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आप नहीं कर पा रहे उसको हैंडल तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम में एचआर कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर आपको इसके सॉल्यूशन सीखने हैं तो यू कैन डेवलप योरसेल्फ विद कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स जो होते हैं। यूट्यूब सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वहां से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप, और वहां से आप अपने को डेवलप स्केल अप करके कहीं ना किसी कंपनी में करके आप आगे बढ़ सकते हैं। Okay, sir. एनी Yes, मोर sir. क्वेश्चन? And yes, sir. Third question is from Anshraj Bhagel. Sir, what is the process to become an AHR? ओके, तो एचआर में अगर देखा जाए तो टर्म्स बहुत सारे हैं। एचआर ह्यूमन रिसोर्स, एक एचआर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दोनों टर्म्स में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर एचआर बनना है तो आप जैसे बैचलर डिग्रीज होती है बीकॉम या बीबीए, उसमें आपका स्पेशलाइजेशन होता है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, जहाँ पे आप एचआर, मार्केटिंग या फाइनेंस ऑप्ट कर सकते हैं, तो उसके थ्रू बन सकते हैं। एचआर में ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि अगर आप इंजीनियर हैं या आर्ट स्टूडेंट है या कॉमर्स स्टूडेंट है, तो आपको ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ मैं इंजीनियर स्टूडेंट्स को हायर करूंगा या करूंगी ताकि मैं एचआर बनूं। नहीं, आप तीनों फील्ड से हो, तीनों फील्ड से क्वालिफाई कर सकते हो, आप एचआर बन सकते हैं विद स्पेशलाइज डिग्री, और किसी फर्म में काम करके आप चालू कर सकते हैं अपना करियर एचआर में। Question from Divyanshi Gupta. What are the steps to become HR analyst? Sorry about that. I don't know much deeply in HR analyst. Please connect me in LinkedIn and I will provide you help with any information further needed. So sorry, Divyanshi, about that. So Divyanshi, you can connect with sir on the LinkedIn. So sir, give the information about that. Okay, Yeah, sir. I will connect us. Yeah, Yeah. yeah. And sir, one more question from the Rahul Sharma. He is asking, what is difference between HR and hiring team in technical field? HR in hiring team. Okay. सो एचआर बेसिकली एक स्पेशल डेजिग्नेशन होती है जहां पे उसको ग्रूम किया जाता है कि एट द एंड सामने किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करना है, कैसे करना है, कैसे आपको माइनिंग करनी है अपने परफेक्ट उसके एम्प्लॉयज की हाँ मेरे को ये पर्सन इस डोमेन के लिए चाहिए, और अगर इस डोमेन का है तो मेरे को सबसे बेस्ट सुटेडली कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। और क्योंकि एचआर का जो काम होता है उसमें होता है एक लिमिटेड बैरियर होता है सैलरी का, कि आपको इतने अमाउंट ऑफ सैलरी, इतने एलपीए में आपको इस पर्सन को हायर करना है, एंड रेस्ट विल बी डिस्कस इन द फ्रंट ऑफ डायरेक्टर्स और द बोर्ड मीटिंग जो भी होती है। एक हायरिंग टीम होती है, हायरिंग टीम स्पेशलाइज किसी चीज में की होती भी है, नहीं भी होती है। हायरिंग टीम में होता है मेरे को सेल्स का पर्सन चाहिए, मैंने अपने किसी नीचे सबॉर्डिनेट को बोला भाई तो मेरे को सेल्स का पर्सन ला के दे, मैं उसको काम देना चाहता हूँ, मार्केटिंग करनी है मेरे को, मार्केटिंग का काम ला के दे, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करके दे। ये डिफरेंस होता है, लेकिन एचआर जो होता है वो डेजिग्नेटेड पोस्ट होती है। You to open your camera. So, sir, the meeting looks little interactive, I think. Okay, wait a second. I think Rahul Sharma is asking a way further question. I cannot see it on the screen. Question from the Sanya. She is asking, sir, how to get an internship if I am doing BTech right now, but she Oh, doesn't specify in which field. yes, that was the question I'm asking about. In what field do you specializing in? Sanya. In which field do you want to? CSE. Yeah, Okay. in So, in which year? थर्ड। ओके, सो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो अभी से थर्ड ईयर में सीएससी में, बीटेक में। सो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। जहाँ से पर्सनली मैं बताऊँ, जहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया था मैंने, जो कि तब मेरा इंटर्न चला था, और साथ में मैंने लिंक्डइन काफी ज्यादा चलाया था। हैव नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस जहाँ पे तुम अपना रिज्यूमे बना के रखो पहले से ही,
और स्पेसिफिकली रेज्यूमे को बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनाना, देखिए कि क्या होता है, कैसे भरा जाता है, कौन सी फील्ड के अकॉर्डिंग मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं किस में अच्छी हूँ, मैं किस में अच्छा कर सकती हूँ, या मैं कौन सा कोर्स ऐसा कर सकती हूँ कि हाँ मेरे को आगे के हेल्प करेगा। आप लिंक्डइन पे जाओ, वहां पे कंपनी सर्च करो, आपकी डोमेन की, फील्ड की, सीएससी की, वहां पे आप देखोगे एप्लीकेशन अप्लाई का फॉर्म रहता है, आप वहां पे अप्लाई करोगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप वहां का बायो पढ़ना, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना कि ये फील्ड किस चीज के लिए है, कैसी है, क्या काम लगेगा। और जब आप उधर अप्लाई करोगे तो अपना रिज्यूमे को उसके हिसाब से चेंज करते रहना, ताकि अगर आप चेंज करोगे तो कंपनी को भी जब आपका रिज्यूमे जाएगा तो पढ़ने लगेगा कि हाँ ये जो इसका एम्प्लॉय का मेरा काम आया है यहाँ पे इस फील्ड से मैच कर रहा है, एंड देन यू विल हैव द इंटरव्यू। लेकिन जब आप लिंक्डइन पे अप्लाई करोगे तो ये मत सोचना कि मैंने 5 कंपनी में अप्लाई कर दिया, 6 कंपनी में कर दिया या 10 कंपनी में कर दिया बहुत है आज के लिए, ऐसा नहीं होता है। अप्लाई द नंबर ऑफ टाइम्स, आपको कम से कम 50 से 100 कंपनी मिनिमम बेर मिनिमम अप्लाई करके रखना पड़ेगा, तब जाके सामने से ऑफर्स आएंगे। और ऐसा आप स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट करना कि मेरे को पेड इंटर्नशिप मिले या अच्छे से कहीं से कंपनसेटेड वाली इंटर्नशिप मिले, नहीं। अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए बस कूद जाओ, भले ही अनपेड मिल रही हो कर लो, एक्सपीरियंस गेन कर लो विद द वेरिएंट ऑफ योर बैचलर डिग्री। जब आप बैचलर डिग्री ले रहे होगी बीटेक की अपने हाथ में, तब बोल सकते हो कि हाँ have the experience now, any company would hire me without asking any further questions. Any more questions? Yeah, sir. One more question is from Muskan Pandey. Sir, she is asking, she is from tech background, so she is able to become a HR or not? Okay, you belong from a tech background, but you need to want to pursue HR. Yes, you can definitely pursue HR because HR कोई ऐसा limitations नहीं है कि मैं किसी भी, आप कोई भी फील्ड से हो आप HR pursue कर सकते हो, whether you are from arts or commerce or basically engineering or student or science student, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप एट द एंड अपना करियर स्विच भी कर सकते हैं, इंजीनियर से आप ह्यूमन रिसोर्स में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बस कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसके लिए आप एचआर से थोरली ब्रीफ हो जाओ, अच्छे से इंट्रो हो जाए, ताकि आगे जाके आप अच्छे से काम कर सके। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आप आराम से किसी भी एचआर फील्ड में जा सकते हैं। Any further Another questions? question, yes, sir. Another question from Sanya. So she is asking, what is the best platform for making resume and in which I can update it accordingly or easily? ओके, सो रिज्यूमे के लिए अगर साइट बताई जाए तो सबसे बेसिक है कैनवा यूज करो। लेकिन कैनवा में भी हर प्रीसेट को यूज मत करना, वहां पे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना, उसमें जाके आप अच्छे से और आइडियाज ले सकते हैं। यूज चैट जीपीटी, यूज एआई, यूज यूट्यूब वीडियो। यहाँ पे यूट्यूब वीडियो में अगर आप रिज्यूमे सर्च करेंगे आपको बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव कंटेंट मिलेगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा कि आपके रिज्यूमे में क्या होना चाहिए। फिर आप कैनवा पे जाके एक अच्छे रिज्यूमे बनाए। लेकिन अगर जब आप रिज्यूमे बनाते हैं प्लीज डोंट पुट इन योर फोटो, जो कि प्रोफाइल पिक्चर्स लगी रहती हैं उसमें रिज्यूमे में, प्लीज डोंट डू दैट। अच्छे से अपना को डिस्क्राइब करें, अपनी स्किल्स को अच्छे से डिस्क्राइब करना, ताकि हाँ मैं इस फील्ड में, सीएससी फील्ड में हूँ, मेरे को ये लैंग्वेज HTML आता है, HTML में इतना स्पेशलाइज हूँ, मैं इतने साल प्रैक्टिस करी है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट विथ माई लैंग्वेज कि हाँ जो भी आप मेरे को टास्क होके मैं कर सकती हूँ, वो अच्छे से डिजाइन करना। नंबर ऑफ लेटर्स सिंगल साइडेड शीट रखना रिज्यूमे में, आपको कम से कम वर्ड्स यूज करने हैं लेकिन इंफॉर्मेटिव भी रखना उसको। ओके, सो अनदर क्वेश्चन। हेलो, Hello. Yes, sir. Yeah. The next question is from Muskan Pandey also. Tech jobs is better or HR job? okay, tech jobs are better or the HR job? So as we are seeing कि यार टेक्निकल फील्ड या टेक्नोलॉजी जॉब्स अगर देखी जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसमें एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर रहे हो तो एचआर भी आपका अच्छा है, लेकिन उधर भी आपको एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करना पड़ेगा। दे आर ऑन द सेम स्किल, बेसिकली एक्चुअली दे आर ऑन द सेम स्किल कि आपको टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, आप एचआर में भी उतने बंदे हायर करने की लगेंगे कि हाँ एचआर बढ़ रहा है तो मेरे को टेक्नोलॉजी में भी उतने बंदे हायर करने पड़ेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी फॉर्म में अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा
अफेक्ट कर रहा है, जो कि एचआर को भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन अगर एचआर अगर चाहे तो वो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बंदे को भी रिजेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली दे आर ऑन द सेम स्केल। आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आप टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल आपको जॉब ज्यादा अच्छी रहेगी एचआर वाली। बोथ आर वेरी गुड पेइंग जॉब, बहुत हैंडसम अमाउंट मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. Sir, the next question is from Rahul Sharma. What is the role of HR when start up in base of NGO's money management? ओके, एचआर तो बेसिकली आपको पहले देखना पड़ेगा एचआर में क्या कर रहे हैं। अगर एचआर में है, अगर आप तो उधर जाके आपको देखना पड़ेगा कि मेरी एनजीओ जो है मेरे से क्या चाहती है। क्या मेरे से बंदे चाहती हैं जो कि अनपेड इंटर्नशिप्स करें, मार्केटिंग करें, या नेटवर्किंग करें, या कनेक्शंस बनाएं, या फिर मेरी एचआर ये चाहती है कि मैं टेक्निकल बंदे हायर करूँ, या यहाँ पे जाके मैं इंफॉर्मेटिव कंटेंट राइटर हायर करूँ। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कैसे हो सकता है। और एनजीओ मनी मैनेजमेंट में अगर आपका एचआर है तो आप थॉट की बहुत मिनिमल आपको प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा कोई सच फेस नहीं करना पड़ेगा आपको। Okay. Yeah. And the next question is from Ashush Kama. He's asking about it's necessary to add a certificate in resume. Actually, it's not necessary to add the certificate, क्योंकि आपका certificate is the sum of the thing that is self learning, self development। लेकिन हाँ, अगर कहीं वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, जैसे कि फील्ड में देखा जाए, आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जावा का सर्टिफिकेट है, एचटीएमएल का सर्टिफिकेट है, तो उसमें आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट वो रीड थ्रू नहीं करते हैं। जो आपके एक लेटर में लिखा रहता है, जब आपके रिज्यूमे में लिखा रहता है कि आई एम फ्रॉम दिस फील्ड, मैं इस कंपनी में 2006 से 2010 तक काम किया है, मैंने इस लेवल ऑफ पोजीशन पे काम किया है और ये काम किया, दैट्स द ओनली मैटर। जो आपके सर्टिफिकेट्स है वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में अपलोड होंगे, क्योंकि एट द एंड जब जूरी बैठती है, जब जूरी आपको देखती है रेज्यूमे को, तो पर्सन को एचआर पे सर्च करते हैं, यहाँ पे आपके डिजिटली डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ऑलरेडी अपलोडेड होते हैं। तो सर्टिफिकेट रेज्यूमे में ऐड मत करना, उसको तुम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में डालो, वहां पे शोकेस करो। Okay. So the last question is from Sanya. If I want to make project to put into resume, from where I can get price a precious step to work on the step by step. प्रिसाइज स्टेप्स टू वर्क ऑन स्टेप बाय स्टेप। ओके, सबसे बेस्ट अगर हम इंडिया की बात करूं, इंडियन डोमेन में सबसे बेस्ट चीज है, अगर आपको प्रोफेशनल हायरिंग चाहिए, आपको रिज्यूमे के थ्रू प्रोफेशनल वर्क फील्ड में, तो आप लिंक्डइन पे जाओ। लिंक्डइन पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज रहते हैं, आप उनको देख सकते हो, जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स भी बताएंगे कैसे करना है। या फिर आप सेकंड ऑप्शन ये ऑप्ट कर सकते हो कि यू कैन गो विद द एप्लीकेशन और द वेबसाइट कॉल वेब ऐप कॉल कोर्सेरा। कोर्सेरा एक पेड एप्लीकेशन है जो कि इंस्टॉल फ्री में हो जाता है, लेकिन जो उसके अंदर कोर्स रहते हैं वो पेड रहते हैं। तो उसको आपको पेड कोर्सेज को कैसे फ्री में ऑप्ट करना है, आप चैट जीपीटी पे जाओ, फाइनेंशियल एड का ले, उसको बोलो एक्ट एज अ फाइनेंशियल एड प्रोवाइडर, प्रोवाइड मी फाइनेंशियल एड लेटर फॉर द कोर्सेरा एंड फॉर दिस फील्ड। तो चैट जीपीटी आपको कोर्सेरा के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगा। फाइनेंशियल एड क्या होता है, जिसमें आप मान लीजिए कोई कोर्स आपको ऑप्ट करना है, कोई चीज करनी है, कोर्सेरा में बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, यहाँ पे बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं। अगर आपने देखा कि मेरे को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स है, वो पेड है, लेकिन सिखाती भी उधर अच्छा है, आपको सीखना भी है, तो आप उसके कमेंट बॉक्स में जाके एप्लीकेशन फॉर्म में डाल के आप फाइनेंशियल एड लगा सकते हैं। विद इन अ वीक और 2 आपको वहां से रिवर्ट आएगा कि हाँ, आपको फाइनेंशियल एड एक्सेप्ट कर लिया है, आपको कोर्स फ्री में ऑप्ट किया जाता है। तो वहाँ पे आपको पूरे स्टेप्स मिल जाएंगे कि आपको प्रोजेक्ट कौन से इंक्लूड करने हैं। इवन द रिज्यूमे बिल्डिंग इज ऑन द कोर्सेरा, यू कैन गो दैट थ्रू। Okay, I think all the doubts are cleared. Anyone have any doubt, then they can ask in their chat section also. Yeah, Aman, there is one more question from the Raghav. He is asking, there is no internship in CV, so if it is okay or we have to do one in tech background. Pardon, I could not able to get your question. Could you please repeat it again? Sir, Raghav is asking that he is no internship to put in the resume. So it is okay to do one internship in tech background. Okay, so basically
राघव, आपको अपनी फील्ड देखनी है कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो फ्यूचर में आप अपना करियर परस्यू करेंगे वो आपके इंटर्नशिप्स पे डिसाइड करता है। अगर आप मान लीजिए आप टेक्निकल फील्ड में है लेकिन आपने किसी एचआर का इंटर्नशिप कर लिया, तो एट दिन वो एचआर में जो आपने टाइम पुट ऑन किया है, जो वर्क एफर्ट पुट ऑन किया, वो वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको जिस इंटर्नशिप पे जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास 0 इंटर्नशिप्स है, आप बस 1 इंटर्नशिप है, 2 इंटर्नशिप है, एटलीस्ट आपने ट्राई कर रहे हैं। कंपनीज हायर करती हैं, इंटर्नशिप्स मिलते हैं, दिए जाते हैं, भले ही वो अनपेड हो या पेड हो, कोई दिक्कत नहीं होती। भले आप 0 इंटर्नशिप को गिव इट अ शॉट, अच्छे से रिज्यूमे प्रिपेयर करो, अच्छे से इंफॉर्मेटिव जाओ। इससे मत डरना कि तुमको अनपेड मिल रही है। जाओ जिस फील्ड में, उस फील्ड की इंटर्नशिप ढूंढो, उधर जाके अप्लाई करो, डेफिनेटली यू विल गेट अ कॉल बैक, तुमको वहां से हायर किया जाएगा, भले ही अनपेड हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपीरियंस गेन करो, उसको अपने रिज्यूमे में पुट ऑन करो, फिर से दोबारा अप्लाई करो, फिर अगर अनपेड में लगी दोबारा, फिर से कोई बात नहीं, फिर से उसको रिज्यूमे अप्लाई करो। ऐसे में आपका रिज्यूमे भरता जाएगा। एट द एंड रिज्यूमे भरने के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन होता जाएगा। जहां आपका एक्सपीरियंस बढ़ा, वहां पे कंपनी ने आपको सोच समझा कि हाँ ये बंदा केपेबल है, इतने एक्सपीरियंस कर रहा है, कंपनी इसको हायर कर रही है, बल्कि फिर इंटर्नशिप में डेफिनेटली एट द एंड आपको अच्छा वर्क पुट ऑन मिलेगा, एंड योर अल्टीमेट गोल विल बी अचीव ऑफ गेटिंग पेड इंटर्नशिप। What is the plan freshers if he or she is not selected in technical role in any tech company? Technical role, what is the plan B for freshers after not selected in technical role in tech company? Okay. तो अगर ऐसा होता है, आप टेक्निकल कंपनी में सेलेक्ट नहीं होते, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जाके ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हैं। देखो, हार तो नहीं मारना, हार मानोगे तो सब हार जाओगे। बढ़िया आराम से थोड़ा अपने आपको टाइम दो। जिस फील्ड में तुम लैग करो, जहां पर तुम्हारा स्कोर खराब आ रहा है, उसको सुधार लो। टाइम लग रहा है, लगने दो, क्योंकि ये गलतियां करने का ही टाइम है। अगर तुम अभी गलती करके अभी समझ जाओगे, समझ लोगे, तो भाई बहुत ही अच्छा। गलती कर, गलती 1000 कर, 100 कर, 200 का कोई मतलब नहीं। अगर गलती से तू सुधार रहे हो, तुम सुधार रहे हो, अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। कोई टेक्निकल कंपनी हायर नहीं करी, सर्टिफिकेट कोर्सेज करो, यूट्यूब से सीख लो, कोर्सेरा से सीख लो, लिंक्डइन से सीख लो, इंटर्नशिप से आपके इंटर्नशाला से सीख लो, आपको वहां से मिलेंगी। कोर्सेज कर लो, अपने आप को फ्री प्रोजेक्ट्स में लगाओ, फ्रीलांसिंग वर्क करो, या फिर किसी की जगह अनपेड इंटर्नशिप करो, या किसी के अंडर काम करो। आप पैसों की चिंता मत करो अभी कि पैसे मेरे को अच्छा अमाउंट मिलेगा, बस तुम करते जाओ, डेफिनेटली तुमको एक दिन तुम्हारा गोल अचीव हो जाएगा। ऐसा मत डरना कि मैं कोई हायर नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन एक्सपीरियंस आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। Any more questions? Yeah. The next question is from Chitranshu Yadav. What should I do firstly learn? Web development or DSA? DSA, data science analyst. Am I correct? Data structure and algorithm. Data structure algorithm. Oh, I don't know about data structure algorithm because I belong from a commerce background Yeah. and majored in my finance. So I don't know about the technical field you are asking about. I will get back to you soon with the LinkedIn connection. If you send me at the Palash Vishwakarma, founders of it EOE. Link me over there and I'll give you the queries and the answers for your questions. Okay, by the way, I will give you the answer for this question. First, if you have any knowledge of any coding language, then you can move forward for DSA. And web development is also important for your campus journey. So also do web development. But first of all, DSA, make your hands on DSA first. Okay, Chitranshu. And the second question is from Rahul Sharma. Plan B, it's again, what is the plan B for freshers after not selected in HR role in any company? I think he's asked. No, it's ओके, तो different. अगर उसको एचआर रोल में, देखो राहुल, अगर आपको एचआर रोल में जाना है किसी भी कंपनी में, अगर सेलेक्ट नहीं होते हो, तो आप पहले अपने गोल अच्छे से डिसाइड करो कि आपको एग्जैक्टली किस फील्ड में जाना है। अगर आपका तय है, जैसे कि मैं ज्यूम कर पा रहा हूँ कि एचआर फील्ड में ही जाना है, तो ऐसा मत करो कि एक ही कंपनी से हायर नहीं हो तो दूसरी कंपनी जाता है। फ्रेशर्स को हायर करने की बहुत ज्यादा होड़ पड़ी है, क्योंकि फ्रेशर्स वो होते हैं जो कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डालते हैं। वो लाइक माइंडेड होते हैं, वो फ्यूचर माइंडेड होते हैं, वो अभी के टाइम पे जो कौन सा टर्म चल जेंजीज, क्योंकि आने वाली
जनरेशन को समझते हैं। अगर तुम एक जगह से हाँ नहीं हो, दूसरी जगह डेफिनेटली हो गया, तीसरी जगह हो गया, चौथी जगह हो गई, ऐसा मत टेंशन लो कि नहीं हो पाओगे। कोई प्लान भी नहीं, अगर तुमको एचआर ही बनना है, न्यूमरस नंबर ऑफ कंपनीज अप्लाई ओवर देयर, आराम से काम हो जाएगा तुम्हारा। Okay, next question is from Sanya. Can internship be written under experience section of resume? And second question is, can you please share your LinkedIn ID? ओके, सो जो एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर जो इंटर्नशिप रहते हैं, डेफिनेटली हाँ, हाँ जी, वहीं पे आता है आपका जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वहीं पे आपके इंटर्नशिप्स आते हैं, क्योंकि आपने वहाँ टाइम पुट किया, अपने एफर्ट पुट किया है। आप अच्छे से फॉर्मेट देखेंगे, किसी भी रेज्यूमे में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका नाम आता है, कॉन्टैक्ट नंबर आता है, देन योर प्रोफेशनल ईमेल आईडी, जो कि स्पेसिफिकली प्रोफेशनल वर्क स्पेस के लिए बनी होती है, वो ईमेल आईडी। देन फिर आपके एक्सपीरियंस आते हैं, जहाँ पे आपने चाहे इंटर्नशिप्स की हो, चाहे जॉब्स की हो, चाहे अनपेड वर्क किया हो, चाहे आपने एनजीओ करा हो, चाहे आपने कोई काम किया हो जिससे आपका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारी चीजें आपके एक्सपीरियंस के अंदर आती है। और साथ में जो जो काम आप मेंशन कर रहे हो, उसके लिए छोटा सा ब्रीफली डिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन रहता है कि मैंने इस फील्ड में ये काम किया था, मैं इतने समय से इतने समय तक थी, और फिर आगे जाके मैंने यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, एंड एट द एंड वहां पे मेरा नोटिस पीरियड चालू हो गया। How can I apply for internship? Just go. Okay. So next question is from Chitranshu Yadav. How can I apply for internship? Same question. ओके, गो ऑन लिंक्डइन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, अपनी प्रेफर्ड फील्ड सर्च करो, वहां पे अपना रेज्यूमे अच्छे से पहले से प्री प्लान, वहां पे ऑप्शन रहता है कि प्री अप्रूव रेज्यूमे अपलोड रहता है, वहां पे आप पहले से रेज्यूमे अपलोड कर दो, अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड या अपने प्रायोरिटाइज फील्ड सर्च करो, कंपनी खोलो, टेंशन मत लो, रिमोट वर्क है, हाइब्रिड वर्क है या ऑन साइट वर्क है, बस अप्लाई करते जाओ। अप्लाई कर, वहां पे डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, तुम्हें लग रहा है हाँ सूट कर रही है, तुरंत अप्लाई। टेंशन मत दो रिजेक्शन होने का या कुछ करने का, अप्लाई करते हो, एटलीस्ट अप्लाई मिनिमम ऑफ 100 कंपनीज पर डे, ताकि आपको उनसे फीडबैक मिले, क्योंकि आपको वहां से इंटरव्यूज भी क्लियर करना है। अगर मान लो आपने 10 कंपनी अप्लाई करा, 5 का आपको रिवर्ट आया कि हम आपको इंटरव्यू शेड्यूल करना चाहते हैं, आपने टाइम बताया, डे बताया, जब आपको इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, आपने बात करी, तो हो सकता है आपने ये रिजेक्ट हो गए, फिर दूसरी जगह से फोन आया, फिर रिजेक्ट हुए, तीसरी जगह से आया, फिर रिजेक्ट हो गए। लेकिन जहां से आप रिजेक्ट हो रहे हैं, वहां पे देखोगे भी थी कि हाँ मैंने ये गलती करी, मैं ये अच्छे से बात नहीं कर पाया, मेरे पर इसकी भी कमी थी। फिर जब चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं जब इंटरव्यू देते जाओगे, जैसे आगे बढ़ते जाओगे, रिजेक्शन का ना डर रखते हुए, तो एट दिन आप सिलेक्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट किया उस चीज को लेके। Okay. I think all of the question are done. Okay. So thank you, Palasha, and thank you, ma'am, One for minute this please, amazing. someone is asking about my LinkedIn ID, I think so. Uh, we will send a link in the group, WhatsApp group also. That's for sure, that's Yeah. great. Okay. So thank you, sir, and thank you, ma'am, to give your precious time and Excuse me, for this Aman. amazing session. Aman, Yes. there's one information that I want to give it to you all. Yeah. MacBuddy and UAE are working together, as you all know. We are working on a project, so we are hiring a visionary team. जो भी इंटरेस्ट है, जिनको भी इंटरेस्ट आ रहा है कंपनी में काम करने की, इंटरव्यू देना चाहता है, एज मोस्ट ऑफ यू आर सर्चिंग फॉर द इंटर्नशिप, वो इसका ध्यान रखते हुए मेरे को हिट हुआ था कि हाँ हमारी कंपनी में भी हायर्स कर रहे हैं मैकबडी और यूएई में। सो प्लीज डू हैव हिट इट ऑन लिंक्डइन, आप हमारे गूगल फॉर्म मिल जाएंगे अभी आपको, अगर इंटरव्यू सर्च करना चाहते हैं, विल गिव इट टू यू ऑल। बस आए, इंटर्नशिप अप्लाई करें एंड गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट, देखते हैं आप कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो विल ऑन पेड इंटर्नशिप सैलरी, और अगर आप एक्सपीरियंस खिलाते हैं, यू मोस्ट वेलकम टू अस। Okay. Yeah, that's all, Aman. Thank you so much. Okay. Thank you so much, sir and ma'am, for your precious time. And I hope the audience has enjoyed listening to you. So, hello, am I audible? Vaibhav, Yes, yes, Aman? Aman. Okay. Yeah. Yeah. So it's So time. I should leave it's now. I time have to wrap to up. do some work. Yeah. And by the way, listen, all participants, don't leave this meeting because we have to mark your attendance, as well as send a QR form for the quiz. And in this quiz, don't I have mentioned all the points in early age, don't answer full length of answer. Just to give
the option, direct option like A, B, C and all. So the fastest answer will get a exciting gift hamper. Yeah, Aman. Hello, Vishkama. Just send the attendance form link. Yes, Aman. Yes. Aman, screen is not visible. Hello, Aman, Vishkama. The screen is not visible. Yeah, Aman, I shared. Just check it again. Now it's visible. No, it's blank screen. Wait, I'll share from my end. Just wait a second. Okay, I hope everyone has take the screenshot or mark their attendance. Now let's move to the quiz round. The fastest answer will get a gift hamper from the team Dev Plus Code and the team MacBuddy. Just move for it. Just wait a second, guys, please.
Yeah. Screen this QR code and just play a quiz round, 5 questions, and just mark only option, not give your full answer because it will waste your time. The fastest answer will get the gift hamper from Def Plus Code. And